حیدرآباد میں کل مچھلی کے ذریعے دمے کے مریضوں کو پرساد دیا جاتا ہے۔ اس سے فائدہ اٹھانے کے لیے ہر سال ملک کے مختلف علاقوں سے ہزاروں کی تعداد میں لوگ حیدرآباد آتے ہیں۔ اس موقع پر دور دراز مقامات سے آنے والے مسافرین کے لیے گرودوارہ سری گرو سنگھ سبھا کی انتظامیہ نے اپنے گرودوارے کے دروازے کھول دیے ہیں۔ یہاں فش پرساد کے لیے شہر آنے والے 2000 افراد کے لیے مفت قیام طعام کا بندوبست کیا گیا ہے۔ جنوبی ہند میں موسم گرما کی رخصتی اور بارش کے آغاز کو مرک کہا جاتا ہے۔ اسی دن حیدرآباد میں بتنی برادرز کے نام سے مشہور خاندان مچھلی میں پرساد ڈال کر کھلانے کا انتظام کرتا ہے۔ سمجھا جاتا ہے کہ اس دوا سے دمے کے مرض سے چھٹکارا ملتا ہے۔ اس دوا سے استفادے کے لیے ہر سال پورے ملک سے لوگ حیدرآباد آتے ہیں۔ حیدرآباد میں مقیم سکھ برادری نے گرودوارہ سری گرو سنگھ سبھا میں شہر میں باہر سے آنے والوں کے لیے بلا لحاظ مذہب و ملت قیام و طعام کا انتظام کیا ہے۔ تو لگ بھگ 2000 لوگ ہمارے گرودوارے میں آتے ہیں ہر سال، جو یہاں پر رہتے ہیں۔ ان کی رہنے کی ویوستھا، کھانے کی، سونے کی، ہر چیز کی ویوستھا ہماری گرودوارہ پربندھک کمیٹی کرتی ہے۔ پورے نارتھ انڈیا میں مچھی کا گرودوارہ بول کے فیمس ہوا ہے، تو یہ سیوا ہم لوگ تن من دھن سے ہر سنگت کو وداؤٹ کوئی خرچہ کرے ہم لوگ ان کو پورے بینیفٹس گرودوارے کی طرف سے پرووائیڈ کراتے ہیں۔ گرودوارہ سری گرو سنگھ سبھا میں فش پرساد کے لیے آنے والے مسافرین کے لیے گزشتہ 16 سالوں سے انتظامات کیے جا رہے ہیں۔ ایک اجنبی شہر میں ان کے لیے آرام کے ساتھ 2 سے 4 دن تک قیام و طعام کی سہولت پانے والوں نے گرودوارہ کمیٹی کی مہمان نوازی کو کافی سراہا ہے۔ یہاں کے ویوستھاپک سب سے اچھا لگا ہے، ویوستھاپک کا سسٹم ہے اور بھوجن پانی کی سب ویوستھا اچھا ہے۔ بھگوان ایز اے بھگوان کا مندر۔ پیسے وغیرہ چارج؟ جی نہیں، کچھ نہیں، نشلک سیوا ہے، کوئی چارج نہیں ہے سر۔ گرودوارے میں پرویش ملا، اس کے بعد انہوں نے ہمارے لیے بستر وغیرہ دیے، نہانے دھونے کی ویوستھا بھی کی، صابن وغیرہ بھی دیے۔ ہمیں کوئی چیز لانے کی ضرورت نہیں پڑی، ہم جو چیز ساتھ میں لے کے آئے تھے وہ بھی ہمارے پاس یوں کی تیوں رکھی ہوئی ہے۔ تو پتہ ہے یہاں ویوستھا اچھی ہے اور اس لیے یہیں آتے ہیں۔ صبح جیسے آتے ہی چائے وغیرہ، چائے ناشتہ دی تھی، پھر بعد میں ناشتہ الگ سے دیا تھا، کھانا ہے، اچھی ویوستھا ہے یہاں۔ تو یہاں کی گرودوارے کی بہت اچھی ویوستھا لگی تھی۔ ہم صبح جیسے یہاں کے بیٹھے تو یہاں ہمارا سواگت کیا تھا، ناشتے واسطے وغیرہ ساری چیز، بستر وغیرہ دیے تھے، کھانے پینے کی ویوستھا بھی یہاں اچھی ہے۔ فیسلٹیز ہے تو بہت ساری اچھی فیسلٹیز ہے یہاں پہ۔ برش ان کی طرف سے دیا جا رہا ہے، کولگیٹ، صابن، کھانا پورا فری ہے اور بہت اچھے طرف سے دکھایا جا رہا ہے۔ باہر سے جو لوگ آ رہے ہیں تو ان کو بہت اچھا سب انتظام بہت اچھا کیا ہوا ہے۔ یہاں پہ بہت اچھا ہے، ہر چیز کی فیسلٹی ہے، کھانا ٹائم پہ ملتا ہے، نہانا، مطلب ہر چیز کی فیسلٹی ہے۔ ویوستھا ہے، ہم لاسٹ ایئر بھی آئے تھے ادھر اور اب کی بار آئے، بہت بڑھیا ویوستھا ہے سر یہاں پر ٹھہرنے میں۔ بار دوائی لینا ہے بائیاں دے نال بھی سانو اتنے آ کے کوئی دقت نہیں ہوئی، ایسے آرام نہ پے ہیں، آرام نہ بیٹھے ہیں، آرام نہ سانو کھانا ملے اور دوائی جو دیتے ہیں وہی بڑی صحیح ڈھنگ سے دے رہے ہیں، اور ہم آتے ہیں گاڑی میں جاتے ہیں آتے ہیں، سانو کوئی دقت پریشانی نہیں آتی، نہ اتنے آتی ہے۔ اس سال مچھلی میں دوا کی تقسیم کے لیے مہورت 8 جون کی شام رکھا گیا ہے۔ گرودوارہ سری گرو سنگھ سبھا میں مقیم مسافرین کے لیے گرودوارہ پر ہی بتنی برادرز کی دوا کی تقسیم کا بھی انتظام کیا گیا ہے۔ بیورو رپورٹ، نیوز 18 حیدرآباد۔ تلنگانہ انٹرمیڈیٹ نتائج میں بے قاعدگیوں کے ذمہ داروں پر کارروائی کرنے کی مانگ کرتے ہوئے اے بی وی پی کارکنوں نے احتجاج کیا۔ اے بی وی پی کارکنوں نے انٹرمیڈیٹ نتائج میں لاپرواہی کے ذمہ داروں پر کارروائی کی مانگ کرتے ہوئے بورڈ آف انٹرمیڈیٹ کے دفتر کے گھیراؤ کی کوشش کی۔ پولیس نے احتجاجی طلباء کی کوشش کو ناکام بنا دیا اور حراست میں لے کر دوسرے مقام پر منتقل کر دیا۔ احتجاجیوں نے اسٹرانگ روم سے سوالات کے پرچوں کے غائب ہو جانے اور ایک طالب علم کو 2 ہال ٹکٹ جاری کرنے کی مذمت کی اور لاپرواہی کے ذمہ داروں کو سزا دینے کی مانگ کی۔ واضح ہے کہ ریاست میں آج سے انٹرمیڈیٹ سپلیمنٹری امتحانات کا آغاز ہو چکا ہے۔ 3 لاکھ سے زائد طلباء امتحانات میں شرکت کر رہے ہیں۔ تلنگانہ کے وزیر ٹی سرینواس یادو نے بنسی لال پیٹ بلدی ڈویژن میں ڈبل بیڈ روم کی تعمیر کا سنگ بنیاد رکھا۔ انہوں نے اس موقع پر کہا کہ تلنگانہ حکومت بے گھر افراد کو ڈبل بیڈ روم مکانات تعمیر کر کے دے رہی ہے۔ تلنگانہ حکومت کی یہ اسکیم ملک کی دیگر ریاستوں کے لیے مثالی ہے۔ تلنگانہ حکومت کی زیر نگرانی چلائے جانے والے گروکل ہاسٹلز کے طلباء نے نیٹ 2019 میں شاندار مظاہرہ کیا۔ 150 سے زائد طلباء کو میڈیکل کورسز میں داخلہ یقینی ہو گیا ہے۔
18-19 అకాడమిక్ ఇయర్లో జరిగిన నీట్ ఎగ్జామ్ ఏదైతే ఉందో అందులో ఏకంగా 150 మంది పిల్లలు ఎంబీబీఎస్ మరియు బీడీఎస్ కోర్సులోకి వెళ్తున్నారంటే మాకు నిజంగా చాలా చాలా గర్వం. అంటే ఆల్మోస్ట్ 500-600% కన్నా ఎక్కువగా పెరిగింది మా రిజల్ట్. ఈ సంవత్సరానికి వస్తే 50 నా సోషల్ వెల్ఫేర్లో 54 మంది ఎంబీబీఎస్కు వెళ్ళే అవకాశం ఉంది. అదేవిధంగా బీడీఎస్కు 46 మంది వెళ్ళే అవకాశం ఉంది. ట్రైబల్ వెల్ఫేర్లో 28 మంది ఎంబీబీఎస్కు వెళ్ళే అవకాశం ఉంది. తర్వాత బీడీఎస్కు ఇంకా 22 మంది వెళ్ళే అవకాశం ఉంది. कांग्रेस के सीनियर लीडर आर गुंतिया ने टीआरएस में कांग्रेस के बागी अरकान की शमूलियत की मजम्मत की और इस मामले को पार्लियामेंट, असेंबली और मुल्क भर में उठाने का ऐलान किया. उन्होंने टीआरएस के खिलाफ तवील एहतजाज करने का ऐलान किया. ज्वाइन करना चाहता है, they have got every right to resign and join in any other party and go for the election. We put a challenge. अगर प्रदेश के इतिहास में चीफ मिनिस्टर या लीडर ऑफ ऑपोजिशन पहला बार कांग्रेस पार्टी की तरफ से एक दलित लीडर को चुना गया था, अगर कल आपका सरकार रखने के लिए किसी को लिया वो बात समझ में आता है, सरकार सस्टेन करने के लिए किसी को लिया वो बात समझ में नहीं आता है. मगर क्या प्रतीत होता है? प्रतीत ये होता है कि ये दलित का लीडर को लीडर ऑपोजिशन देखने के लिए वो लोग नहीं चाहते हैं और किसी भी हालत में वो दलित को लीडर ऑपोजिशन रिकॉग्निशन में हटाने के लिए दिस केसीआर गवर्नमेंट एंड केसीआर हैज डन दिस अनडेमोक्रेटिकली एंड कांग्रेस पार्टी की तरफ से ऑर्गेनाइजली और कानून की तोड़फोड़ दोनों जगह में हम लोग उनको लड़ाई करेंगे और पार्लियामेंट में, विधानसभा में, सब जगह में 17 तारीख पार्लियामेंट आ रहा है, वो बात भी जरूर उठेगा, आवाज आएगा पार्लियामेंट में और सारा राज्य में भी एजुकेशनल प्रोग्राम लिया जाएगा. और कल हमारा लीडर ऑफ ऑपोजिशन है भट्टी विक्रमा जी, वो भी कल प्रतिवाद सूचक भी वो धरना में बैठते हैं, अनशन में बैठते हैं और इसका बाद राज्य में हर डिस्ट्रिक्ट में भी एजुकेशनल प्रोग्राम चालू रहेगा. कांग्रेस लीडर मोहम्मद अली शब्बीर ने टीआरएस को तनकीद का निशाना बनाया. उन्होंने पार्टी के बागी अरकान को टीआरएस में शामिल करने स्पीकर के फैसले की मजम्मत की और जमहूरियत को नुकसान पहुंचाने का इल्जाम लगाया. उन्होंने इस मामले पर अदालत से रुजू होने का ऐलान किया और आवाम की अदालत में टीआरएस को खड़ा करने का अज़्म जाहिर किया. 33 సంవత్సరాలు ఉన్నది, ఇంకా కూడా వందల సంవత్సరాలకు ఈ పార్టీ ఉంటుంది. కేసీఆర్ పార్టీ 2019 తర్వాత నామరూపం లేకుండా పోతుంది. గవర్నర్ దగ్గర, స్పీకర్ దగ్గర, సీఎం గారి దగ్గర, మన హైకోర్టులో న్యాయం రాకుండా సుప్రీంకోర్టు ఇది పోతాం, మెయిన్ ప్రజల కోర్టులో పోతాం. कांग्रेस पार्टी कारकुनों ने बागी अरकान असेंबली को टीआरएस में शामिल करने की मजम्मत की. करीमनगर में कारकुनों ने एहतजाज किया और टीआरएस हुकूमत की मजम्मत की. टीआरएस हुकूमत का अलामती पुतला नजर आतिश भी किया. कांग्रेस पार्टी कारकुनों ने टीआरएस हुकूमत के खिलाफ एहतजाज किया और बागी अरकान को टीआरएस में शामिल करने की मजम्मत की और टीआरएस सरबराह का अलामती पुतला नजर आतिश किया. पुलिस ने एहतजाजियों को हिरासत में लेकर दूसरे मकाम मुंतकिल कर दिया है. और वहीं खम्मम में भी कांग्रेस के कारकुनों ने टीआरएस हुकूमत के खिलाफ एहतजाज किया. कांग्रेस कारकुनों ने एहतजाजी रैली निकाली और हुकूमत का पुतला नजर आतिश करने की कोशिश की. पुलिस को रोकने की कोशिश पर कुछ देर के लिए इलाके में कशीदगी देखी गई. हैदराबाद से महाराष्ट्र के पंढरपुर जाने वाली आरटीसी बस शोलापुर में हादसे का शिकार हुई. हादसा लारी और बस के दरमियान हुआ. बस और लारी मुकम्मल जलकर तबाह हो गए. हादसे में 2 अफराद जख्मी हुए हैं. जख्मियों को शोलापुर अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया. हादसा आज सुबह की अव्वलीन सातों में पेश आया. तेलंगाना रोड ट्रांसपोर्ट की बस हैदराबाद 1 डिपो की थी. पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है, जांच जारी है. आंध्र प्रदेश काबीना में कल सुबह 11:49 पर काबीना में तोसी होगी. कल सेक्रेटेरिएट में नए वुज़रा की हलफ बर्दारी होगी. हलफ बर्दारी तकरीब में 6000 अफराद की शिरकत मुतवक्के है.
మార్నింగ్ 10 నుంచి స్వెరింగ్ ఇన్ సెరమనీకి ప్రోగ్రామ్ స్టార్ట్ అవుతుంది. ఈ స్వెరింగ్ ఇన్ సంబంధించిన అన్ని ఏర్పాటు సిద్ధమైంది. ఈ సెరమనీకి ఆల్మోస్ట్ 5000 మంది ఇన్విటేషన్ ద్వారా వస్తున్నారు. విఐపిలో ఇంకా 1000, సో టోటల్ 6000 మెంబర్స్కి ఇక్కడే ఏర్పాటు చేయడం జరిగింది. ఈ 1000లో కూడా కౌన్సిల్ ఆఫ్ మినిస్టర్స్, మినిస్టర్ డెసిగ్నేట్, వీళ్ళ ఫ్యామిలీ మెంబర్స్, తర్వాత ఆల్ ఎమ్మెల్యేస్, ఎమ్మెల్సీస్, ఎంపీస్ వాళ్ళ ఫ్యామిలీతో సహా వస్తున్నారు. దీంతో సహా 4000 to 5000 నార్మల్ పబ్లిక్కి రావడానికి అవకాశం ఉంది. దీనికోసం సెపరేట్ కేటగిరీకి సెపరేట్ పాస్ ఇవ్వడం జరిగింది. తర్వాత రూట్స్ కూడా మన మంగళగిరి నుంచి, తాడేపల్లి నుంచి, విజయవాడ నుంచి ఏ కేటగిరీకి ఏ పాస్ ఉన్నాయో వీళ్ళకి సెపరేట్ రూట్స్ ఉన్నాయి. వాళ్ళకి ఇన్విటేషన్ వెనకాల ఆ రూట్స్ కూడా ఇవ్వడం జరిగింది. సైనేజెస్ కూడా నిన్న సిఎస్ గారు కొంచెం గట్టిగా చెప్పారు. మనం మంగళగిరి నుంచి ఈ వెన్యూ వరకు ఫుల్ ఆల్ హైవేస్కి సైనేజెస్ ఏర్పాటు చేస్తున్నాము. ఈ ప్రోగ్రామ్ 11:39 ఎగ్జాక్ట్గా ఫస్ట్ స్వెరింగ్ ఇన్ స్టార్ట్ అవుతుంది. టోటల్ మెంబర్స్ చూసుకొని ఆల్మోస్ట్ 1 వరకు ఈ ప్రోగ్రామ్ వెళ్తుంది. 1 తర్వాత సీఎం గారు ఈ కొత్త మినిస్టర్స్ కోసం ఒక హై టీ ఆర్గనైజ్ చేస్తున్నారు. ఈ జస్ట్ వెనకాల 1000 మెంబర్స్కి హై టీకి ఏర్పాటు కూడా జరుగుతుంది. నెక్స్ట్ 2-3 అవర్స్లో అది కూడా అయిపోతుంది. సో ఈ హై టీలో స్పెషల్ ఇన్విటేషన్ ఇవ్వడం జరిగింది. సో ఇవన్నీ చూస్తే ఆల్ the things are in place. నార్మల్ పబ్లిక్ కోసం కూడా మౌలిక సదుపాయాలు, ఎక్కువ అమౌంట్లో మంచినీళ్ళు, తర్వాత లంచ్ ప్యాకెట్స్ ఇవన్నీ కూడా ఏర్పాటు చేయడం జరిగింది. आंध्र प्रदेश के वजीर आला जगन मोहन रेड्डी ने अपनी टीम तैयार कर ली है. जगन मोहन रेड्डी की काबिना में जुमला 25 अरकान होंगे. आंध्र प्रदेश के वजीर आला ने मुल्क की सियासत में एक नई मिसाल पेश करते हुए काबिना में 5 नायब वज़ीर आला बनाने का फैसला लिया है. जगन की नई टीम में 5 डिप्टी सीएम, 19 काबीनी वज़रा होंगे जो 8 जून को एपी सेक्रेटेरिएट में 11:49 पर हल्फ लेंगे. जगन मोहन रेड्डी ने नवमुंतखब अरकान असम्बली के इजलास में यह फैसला लिया. आंध्र प्रदेश की तारीख में यह पहला मौका होगा जिसमें रियासत के 5 नायब वज़राए आला होंगे. 5 नायब वज़राए आला में से समाज के हर तबके को शामिल करने की कोशिश की गई है. एपी के नायब वज़ीर आला SC, ST, BC, माइनॉरिटी और कापू तबके से एक होंगे. उन्होंने वाज़ेह किया कि एपी काबिना को 2.5 साल बाद तब्दील कर दिया जाएगा और 90% वज़रा को तब्दील कर दिया जाएगा. वज़रा की कारकर्दगी का जायजा लिया जाएगा. काबिना में MLA और MLC दोनों को जगह दी जाएगी. वाज़ेह है कि आंध्र प्रदेश में नए वज़रा की 8 जून को सेक्रेटेरिएट में 11:49 पर हलफ बर्दारी तकरीब शुरू होगी. आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के गवर्नर ESL नरसिम्हन अमरावती पहुंच चुके हैं. हुक्काम ने गवर्नर का इस्तकबाल किया. गवर्नर कल नए वज़रा को हलफ दिलाएंगे. वज़ीर आला जगन मोहन रेड्डी ने गवर्नर से मुलाकात करके नए वज़रा की तफसीलात से वाकिफ कराया. एपी में नए वज़रा की गाड़ियां तैयार की जा रही हैं. वज़रा को एक ही डिज़ाइन की कारों को तैयार किया जा रहा है. पुरानी कारों की मरम्मत की गई है. सदर तेलुगु देशम पार्टी एन चंद्रबाबू नायडू ने गवर्नर नरसिम्हन से मुलाकात की. उन्होंने मौजूदा हालात पर तबादला ख्याल किया. वाज़ेह है कि तेलुगु देशम हुकूमत खत्म होने के बाद नायडू की गवर्नर से ये पहली मुलाकात है. आंध्र प्रदेश बीजेपी के सदर कन्ना लक्ष्मी नारायण ने कहा कि एपी को खुसूसी दर्जा देने की बात अब खत्म हो चुकी है. ये बाब अब बंद हो चुका है. उन्होंने कहा कि बीजेपी हुकूमत ने एपी की तरक्की के लिए बहुत कुछ किया है और करते रहेगी. उन्होंने कहा कि इतवार को वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी को एपी का दौरा करेंगे. ముగిసిపోయినటువంటి అధ్యాయం అది కుదిరే పని కాదు.
ఒక్కది అది గనక కుదిరే పని ఉంటే ఆంధ్ర రాష్ట్రానికి ఆయన ఇంత చేసి చేయాల్సిన దానికన్నా కూడా అధికంగా చేసి ఒక స్పెషల్ స్టేటస్ అనేటువంటి పేరు తప్ప స్పెషల్ స్టేటస్లో వచ్చేటువంటి వనరులన్నీ కూడా అంతకన్నా ఎక్కువ ప్యాకేజ్ రూపంలో ఈ రాష్ట్రానికి ఇచ్చారు. आंध्र प्रदेश के चित्तूर में सड़क हादसा हुआ है. हादसे में 5 अफराद हलाक हो गए जबकि 5 जख्मी हुए हैं. सुबह 5 बजे ट्रक और कार की टक्कर हो गई. तमाम जख्मियों को अस्पताल में इलाज के लिए दाखिल करा दिया गया है. बताया जा रहा है कि जेलो कार में 3 खानदान के 10 गुंटूर से तिरुमला मंदिर के दर्शन के लिए जा रहे थे. इसी दौरान यह हादसा पेश आया. उर्दू ज़बान को कई ऐसी हस्तियां भी मैसर आई हैं जिनकी तख्लीकी सरगर्मियों का दायरा किसी एक सिन्फ अदब या तख्लीकी शोबे तक महदूद नहीं रहा, जिनकी शख्सियत के नूर ने कई सिमतों में सफ़र किया और इल्म तख्लीक के कई रास्ते रोशन किए. इन रोशन शख्सियतों में एक अहम नाम ख्वाजा अहमद अब्बास का है, जिन्होंने सहाफ़त भी की, अफसाने भी लिखे, नावल भी तहरीर किए, फिल्मों से भी जुड़े रहे और हर इल्मी व तख्लीकी शोबे में ऊंचा मर्तबा हासिल किया. ख्वाजा अहमद अब्बास का ताल्लुक़ उर्दू अदब के सबसे पहले नक्काद और अजीम शायर ख्वाजा अल्ताफ़ हुसैन हाली के घराने से था. वो पानीपत में हाली के ही घर में 7 जून 1914 को पैदा हुए. पेश है तफसीलात. ख्वाजा अहमद अब्बास 7 जून 1914 को पानीपत में पैदा हुए. उनके वालिद गुलामुस्सिब्तैन मुस्लिम यूनिवर्सिटी अलीगढ़ के ग्रेजुएट और एक शहजादे के मौल्लिम होने के अलावा एक खुशहाल दौलतमंद ताजिर थे. 7वें दर्जे तक ख्वाजा ने पानीपत में ही तालीम पाई, जिसके बाद न सिर्फ अंग्रेजी में ग्रेजुएशन किया बल्कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से कानून की सनद भी हासिल की. अपना करियर उन्होंने दिल्ली के अंग्रेजी अखबार नेशनल कॉल से बतौर सहाफ़ी शुरू किया और बाद में द बॉम्बे क्रॉनिकल के फिल्मी हिस्से के मुदीर हो गए. इसी दौरान ख्वाजा अफसाना निगारी की तरफ माइल हो गए. इनके अफसानों का पहला मजमुआ एक लड़की के उन्वान से शाया हुआ. बाद में ज़ाफ़रान के फूल, अंधेरा उजाला, कहते हैं जिसको इश्क के नाम से भी मजमुआ आए. अब्बास साहब ने ड्रामे भी तहरीर किए जिनमें जुबैदा, ये अमृत है और 14 गोलियां काबिल जिक्र हैं. इनका एक सफरनामा मुसाफिर की डायरी के नाम से शाया हुआ. पंडित जवाहरलाल नेहरू पर उनकी एक किताब गेहूं और गुलाब काफी मकबूल हुई. उर्दू अदब से भी ज्यादा शोहरत ख्वाजा अहमद अब्बास ने हिंदुस्तानी फिल्मों से पाई. फिल्म क्रिटिक तो वो थे ही, बाद में फिल्मसाज, हिदायतकार, फिल्मों के स्टोरी राइटर, मंजर निगार और मकालमा निगार की हैसियत से भी उन्होंने हिंदुस्तानी सिनेमा की 7 साला तारीख पर अपने गहरे नक्श छोड़े. बतौर हिदायतकार उनकी पहली फिल्म धरती के लाल ने हिंदुस्तानी सिनेमा में हकीकत पसंदाना समाजी फिल्मों की तहरीक शुरू की, जिससे वो हमेशा जुड़े रहे. ख्वाजा अहमद अब्बास की रंगीन फिल्म परदेसी कांस फिल्म फेस्टिवल में आला अवार्ड के लिए नामजद हुई. उनकी फिल्में शहर और सपना, 7 हिंदुस्तानी और 2 बूंद पानी ने कौमी अवार्ड हासिल किए. अफसानों और नॉवल की तरह फिल्मों में भी ख्वाजा अहमद अब्बास के मौज़ूआत आम लोगों के दुख दर्द और उनकी महरूमियों के इर्द गिर्द रहते थे. ख्वाजा की फिल्म 7 हिंदुस्तानी ने हमें अमिताभ बच्चन जैसा अजीम अदाकार दिया, जो आज भी फिल्मी दुनिया पर राज कर रहा है. अदाकार के तौर अमिताभ बच्चन की तरबियत ख्वाजा अहमद अब्बास के हाथों ही शुरू हुई. हिंदुस्तानी सिनेमा की मकबूल तरीन हस्ती राज कपूर को राज कपूर बनाने में भी ख्वाजा अहमद अब्बास का बड़ा हाथ था. राज कपूर की बेहतरीन फिल्में जो आज क्लासिक का दर्जा रखती हैं, ख्वाजा की लिखी हुई हैं. इनमें जागते रहो, आवारा, श्री 420, मेरा नाम जोकर, बॉबी और हिना शामिल हैं. हिंदुस्तानी फिल्मों को साहिर जैसा अजीम फिल्मी नगमा निगार देने में भी ख्वाजा का हाथ है. बतौर कॉलम निगार भी ख्वाजा अहमद अब्बास ने तारीख रकम की. बॉम्बे क्रॉनिकल से उन्होंने 1935 में अपना अखबारी कॉलम लास्ट बेंच के नाम से शुरू किया. ख्वाजा अहमद अब्बास ने जो जुबान अपनी तहरीरों और फिल्मों के लिए इस्तेमाल की, वो सही मानों में आम उर्दू जुबान है जो सबकी समझ में आती है. जब तक लोग उर्दू बोलते और लिखते पढ़ते रहेंगे, तब तक ख्वाजा अहमद अब्बास की याद दिलों में बसी रहेगी. ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 उर्दू. महज़ब दुनिया में मजहब और मजहबी ज़बान के नाम पर तफरीक एक आम बात है, लेकिन मध्य प्रदेश के कदीम तारीखी शहर बुरहानपुर में एक ऐसी इबादतगाह है जहां पर तहजीबों का संगम होता है. ऐद फारूकी में तामीर की गई बुरहानपुर की तारीखी जामा मस्जिद की तारीख को ज़बान अरबी के साथ संस्कृत ज़बान में लिखकर मुस्लिम बादशाहों ने अपनी कुशादा दिली और मुश्तरका तहजीब के फ़रोग़ का जो नमूना पेश किया है, इसकी मिसाल कहीं नहीं मिलती. पेश बुरहानपुर से हमारे नुमाइंदे की खास रिपोर्ट.
बुरहानपुर मध्य प्रदेश का एक कदीम तारीखी शहर है। इस शहर ने 225 साल तक शाहन फारूकी के जाहो जलाल, 120 साल तक मुगल बादशाहों के जलवा आराइयाँ, इसके बाद आसिफ जाही, मराठा और अंग्रेजी हुकूमत के नशेब व फराज को देखा है। बुरहानपुर को मुश्तरका तहजीब का शहर भी कहा जाता है। दुनिया की जब से नशोनुमा हुई, दुनिया के तमाम मज़ाहिब के लोग कौमी यकजहती की बातें तो करते हैं, लेकिन आज तक किसी भी मजहब के मानने वालों ने अपनी इबादतगाह में अपनी मजहबी जबान के अलावा दूसरे मजहब की मजहबी जबान को अपनी इबादतगाह में दाखिल नहीं होने दिया। बुरहानपुर की तारीखी जामा मस्जिद इन मानों में दुनिया के तमाम मजहबी इबादतगाहों से मुख्तलिफ है। यहाँ के बादशाहों ने अपनी कुशादा दिली का जो सबूत पेश किया वो बेमिसल है। तारीखी जामा मस्जिद की बुनियाद फारूकी बादशाह आदिल शाह इब्न मुबारक शाह फारूकी के अहद में रखी गई थी। मस्जिद को संगे खारा से तामीर किया गया। संगे खारा को हार्ड आयरन स्टील भी कहा जाता है और इस पर संग तराशी को नामुमकिन कहा जाता है, लेकिन उस अहद के फनकारों ने इस पत्थर पर इस खूबी से संग तराशे हैं कि देखने वाले अश अश कर उठे। दरियाए ताप्ती के किनारे बसा तारीखी शहर बुरहानपुर और बुरहानपुर की शाही जामा मस्जिद आदिल शाह इब्न मुबारक शाह फारूकी ने 1590 ईस्वी 997 हिजरी में तामीर करवाया। इसमें तामीर शुदा पत्थर जो है, पत्थर की जितनी क्वालिटीज होती है सब में हार्ड स्टेनलेस स्टील टाइप संग खारा ब्लैक आयरन स्टोन से कहते हैं। इसकी बहुत सी खसूसियात हैं, जिसमें एक खसूसी है कि इसके मेहराबों को इस तरीके से ढाला गया है कि सीलिंग साथ में बन गई है, बिना सीलिंग की मस्जिद ही कहलाती है। और इसमें जो नक्श निगार लिए गए वो इतने हार्ड पत्थर पे, जो लकड़ी पे बनाना मुश्किल है, जो इतने हार्ड पत्थर पे बनाए गए हैं। बुरहानपुर की तारीखी जामा मस्जिद बहुत सी खूबियों के मालिक है। मस्जिद में इको साउंड का इस्तेमाल किया गया है और आज भी बगैर किसी लाउड स्पीकर के इमाम की आवाज आप मस्जिद के किसी भी गोशे से सुन सकते हैं। मस्जिद के अंदर 15 मेहराब है और हर मेहराब की डिजाइन एक दूसरे से मुख्तलिफ है। इस मस्जिद को बगैर छत की मस्जिद भी कहा जा सकता है। मस्जिद के सुतूनों को इस तरह से लगाया गया है कि आपस में इस तरह से मिल गए हैं कि अलग से छत की जरूरत ही महसूस नहीं होती। इसकी सबसे बड़ी खूबी यह है कि इस मस्जिद की तारीख को अरबी जबान के साथ संस्कृत जबान में लिखकर फारूकी बादशाहों ने हिंदू मुस्लिम यकजहती का सबूत दिया है। ये है कि इसकी हिस्ट्री जो है 2 लैंग्वेज में लिखी गई है, अरबिक और संस्कृत। संस्कृत आमतौर पर हिंदुओं की एक धार्मिक जबान है, उसको अपनी इबादतगाह में जगह देकर मुस्लिम शहंशाहों ने अपनी कुशादा देने का सबूत पेश किया और हिंदू मुस्लिम इत्तेहाद का एक नमूना है। भाईजान, शायद ऐतिहासिक जिला पर्यटन नगरी बुरहानपुर हिंदुस्तान की सरजमी पर ऐसा शहर है, निश्चित तौर पर यहाँ की हिंदू और मुस्लिम की जो मोहब्बत है वो एक तारीफ काबिल है और इसका संदेश पूरी दुनिया में जाता है। उसका कारण है हिंदुओं का दीपावली हो या होली हो, मुसलमान भाइयों का ईद हो या मुहर्रम हो या कोई भी त्यौहार हो, इस मेल भाव, इतने आपसी सामंजस्य से मिल बैठकर मनाया जाता है। इसके जैसा प्रत्यक्ष उदाहरण और दुनिया में कहीं नहीं मिल सकता है। मस्जिद में लगने वाले पत्थर को मांडो से लाया गया था। ये पत्थर बुरहानपुर में नहीं पाए जाते। बुरहानपुर की इस जामा मस्जिद का काम जारी ही था कि जलालुद्दीन अकबर ने 1601 में बुरहानपुर पर कब्जा कर लिया। अगर ये मस्जिद अपने नक्शे पर मुकम्मल हो गई होती तो उसकी खूबसूरती कुछ और होती। मस्जिद में सैकड़ों साल कदीम जैतून की लकड़ी से बनी हुई 1000 दानों की तस्बीह भी है। इस तस्बीह का इस्तेमाल इज्तिमाई तौर पर पढ़ी जाने वाली तस्बीह के लिए किया जाता है। न्यूज़ 18 उर्दू के लिए बुरहानपुर से मेहताब आलम की रिपोर्ट। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। मजीद ताज़ा खबरों के लिए आप लॉग इन कर सकते हैं हमारी वेबसाइट news18urdu.com पर। आदाब।